Hello, dear friends. Today we are going to do the chapter Public Opinion. In this video, we'll cover multiple choice questions and other questions of 1 marks. First, let us begin with MCQs. First question is, who said it? The term public opinion is commonly used to denote the aggregate of the views men hold regarding matters that affect or interest the community. तो किसने कहा ये? We have option Beni Prasad, Lord Bryce या Bryce, Lowell and Willoughby. I will read the definitions of Beni Prasad. Beni Prasad says, opinion may be regarded as truly public when it is motivated by regard for the welfare of the whole society. He talks of the welfare of the whole society in an opinion, so it is not. Lord Bryce, let us check his definition. The term public opinion is commonly used to denote the aggregate of the views men hold regarding matters that affect or interest the community. यही है. We have also answered this. So it is Lord Bryce B. अगर विलोबी की डेफिनेशन की बात करते हैं तो विलोबी says in any community of men public opinion is not the opinion of all its members but only of those person, a few of many, who are left to think and form judgment regarding matters of general interest. So that is Willoughby's definitions. Okay, so answer is Lord Bryce. Let's move to the next question. Which of the following is not the characteristics of public opinion? Public opinion characteristics क्या नहीं? Logical, it should be logical. Ethical, it should be ethical also. Relevant to democracy, yes, it should be relevant to democracy. View of majority, it is not necessary that it should be the view of majority. So answer is D. Let's move to the next question. Which is not considered as agency for the formation of public opinion? Public opinion इसमें से किससे नहीं फॉर्म होता है? Does it help? Yes, education society help करता है, newspaper also, and secret groups secrets रहते हैं, they don't form public opinion, and public platforms भी हैं जो public opinion form करते हैं, right? So our answer is C, secret groups. Next question is, in which form of government the formation and expression of public opinion is not considered a complicated matter? किस फॉर्म में जो है फॉर्मेशन और एक्सप्रेशन जो है पब्लिक ओपिनियन का ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं माना जाता है? तो ये है अथॉरिटेरियन, यस इसमें माना जाता है. डेमोक्रेटिक, यस इसमें नहीं माना जाता है. सो आवर आंसर इज दिस. टोटलिटेरियन भी अथॉरिटेरियन की तरह ही है, कम्युनिस्ट में भी अथॉरिटेरियन ही सिस्टम और रिजीम होता है, राइट? सो आवर आंसर इज बी. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not essential condition for the formation of public opinion? इसमें से एक जो है essential condition नहीं है public opinion फॉर्म करने के लिए, राइट? तो डिक्टेटोरियल रिजीम, यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन फॉर्म नहीं हो सकता है, एसेंशियल कंडीशन नहीं है. तो अपना आंसर पहला ही है, ए है. जहाँ पे सोशल हार्मनी होगी वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन बनेगा, एजुकेटेड लोग होंगे वो पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे, एंड इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट प्रेस होगा तो वहाँ पे अच्छा पब्लिक ओपिनियन बनेगा. बट अगर डिक्टेटोरियल रिजीम होगा तो वहाँ पे नहीं होगा. सो आवर आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ नॉट द हिंड्रेंस फॉर द फार्मूलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन? इसमें से एक हिंड्रेंस नहीं है, बाकी हिंड्रेंस है. तो इलिटरेसी एक हिंड्रेंस है पब्लिक ओपिनियन के लिए, इट इज़ नॉट गुड फॉर पब्लिक ओपिनियन. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये हिंड्रेंस नहीं है, कास्टिज्म हिंड्रेंस है. डेस्पोटिक गवर्नमेंट ये भी हिंड्रेंस है, यानी कि अथॉरिटेरियन रोल होता है, एक हिटलर की तरह रूल करते हैं डिस्पोटिक गवर्नमेंट में, राइट?
सो आवर आंसर इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन में कोई हिंड्रेंस नहीं होता है, रुकावट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट पेयर of means of formation and expression of public opinion from the following: free and honest press and political party। ये this is the answer, ये इसका यही आंसर है। न्यूज़पेपर एंड बायस प्रेस ये पॉसिबल नहीं है, पब्लिक ओपिनियन अच्छा एक्सप्रेशन यहाँ फॉर्म नहीं होता है। तो इसी तरह बायस प्रेस एंड पावर्टी also doesn't lead to expression of public opinion properly, and poverty and free and honest press ये भी नहीं। So our answer is A. Let us move to the next question. Next question is dash is of vital importance in every system of government। पब्लिक ओपिनियन इसमें होना चाहिए, क्लास ओपिनियन नहीं, वर्डिक्ट नहीं, सो इट इज पब्लिक ओपिनियन सी। Who said power corrupts and absolute powers corrupt absolutely? तो ये विलोबी का डेफिनेशन मैंने बता दिया था आपको पहले, ये नहीं है उससे रिलेटेड। लॉर्ड ब्राइस का भी बता दिया था, बेनी प्रसाद का भी बता दिया आपको, विलोबी का भी बता दिया था पहले क्वेश्चन में। तो बच गया लॉर्ड एक्टन। तो आंसर इज लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन ने क्या कहा? पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी कि जो शक्ति है आपके पास आती है वो आपको करप्ट बनाती है, बेईमान बनाती है, लेकिन जब एब्सोल्यूट पावर आ जाती है तो एब्सोल्यूट पावर आपको एब्सोल्यूटली ही करप्ट बना देती है। चलिए, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड इन विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट? डेमोक्रेसी में यस, डिक्टेटरशिप में नहीं, एनार्की में भी नहीं, एंड मोनार्की में भी नहीं। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे मिलता है आपको? डेमोक्रेसी में, यानी कि लोकतंत्र में। नेक्स्ट इज व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन? पब्लिक ओपिनियन क्या है? पर्सनल बिलीफ, एक आदमी के बिलीफ से कुछ नहीं होगा। एक्सपर्ट्स ओपिनियन, ये भी कुछ नहीं होगा। कलेक्टिव बिलीफ्स, ये हो सकता है। और पोलिटिकल आइडियोलॉजीज, ये भी नहीं। तो हमारा आंसर बी ही है, कलेक्टिव बिलीफ। प्रोबेबिलिटी बेसिस पे भी आप आंसर दे सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन? इसमें से जो कौन सा फैक्टर है जो पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकता है? मीडिया, यस इट डज। वेदर, ये भी कर सकता है। ग्रेविटी भी कर सकता है। ऑल ऑफ द अबव आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट source of political socialization that can shape public opinion? फैमिली ये है, रिलीजन भी है, सोशल मीडिया भी करता है इन्फ्लुएंस, एंड स्कूल्स भी करता है इन्फ्लुएंस। अब इसमें क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन दैट कैन शेप पब्लिक ओपिनियन? ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मेथड तो है, बट इट कैन नॉट शेप पब्लिक ओपिनियन, not a source of political socialization that can shape, right? So answer is social media। लेकिन अभी सोशल मीडिया का बहुत प्रभाव है, इससे बहुत अलग तरह की सोशलाइजेशन होती है। The process of public opinion formation can be described as static and changing। नहीं, static और unchanging नहीं है, it keeps on changing, actually dynamic and constantly evolving। Yes, it should be our answer। Let us check others ऑप्शंस ऑल्सो। अदर ऑप्शंस, रिजिड एंड अनरिस्पॉन्सिव, ये भी गलत है। रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल, ये भी गलत है। सो आवर आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिक ओपिनियन पोल्स यूज रैंडम सैम्पलिंग टू। रैंडम सैम्पलिंग होती है। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है कि बीच बीच में हम पब्लिक ओपिनियन लेके एक देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों का क्या मत है। मान लो कि हमने 1 लाख लोगों के बीच में से या 1 करोड़ लोगों के बीच में से कुछ 100 लोगों के विचार जाने, दैट इज नोन एज रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग, सैंपल लेना लोगों के बीच में से। तो पब्लिक ओपिनियन पोल्स यूज रैंडम सैम्पलिंग टू
ensure that everyone's opinion is included, नहीं. Select participants without any methodological bias, yes, ये है. पब्लिक ओपिनियन में रैंडम सैम्पलिंग लिया जाता है ताकि हम पार्टिसिपेंट्स सेलेक्ट कर सकें विचार जानने के लिए विदाउट एनी मेथडोलॉजिकल बायस. किसी तरीके का हम उसमें भेदभाव नहीं करते, तो उसको कहा जाता है रैंडम सैम्पलिंग. तो पब्लिक ओपिनियन पोल्स में रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ किया जाता है, राइट. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं. पब्लिक ओपिनियन कैन हैव अ सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट हो सकता है, प्रभाव हो सकता है किसके ऊपर? पब्लिक ओपिनियन का. वेदर के ऊपर नहीं, स्टॉक मार्केट के ऊपर नहीं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे नहीं, गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज़ पे, गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड डिसीजन पे हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिक ओपिनियन इज शेप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? जेनेटिक्स फैक्टर नहीं, स्टार अलाइनमेंट नहीं, मीडिया एक्सपोजर यस, इससे हो सकता है. हेयर कलर से भी नहीं होगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ डेलिबरेटली मैनिपुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन? किस टर्म से हम जानबूझकर मैनिपुलेट करते हैं या होता है समाज में, हम देखते हैं. क्या पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट किया जाता है? वो प्रोपेगेंडा से, प्रचार से. अब ये प्रचार भी हो सकता है, दुष्प्रचार भी हो सकता है प्रोपेगेंडा से. नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म पब्लिक ओपिनियन मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक ओपिनियन क्या मतलब है? ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं, द कलेक्टिव बिलीफ्स एंड एटीट्यूड ऑफ जनरल पॉपुलेशन यस, ये हो सकता है. ओपिनियन ऑफ द मीडिया नहीं, ओपिनियन ऑफ द इंटरेस्ट ग्रुप नहीं. सो आवर आंसर इज बी. Next question is the collective beliefs and attitude of the general population, which question is which term refers to the process of influencing public opinion through the use of propaganda and media manipulation? Which terms, कौन सा टर्म रेफर करता है उसके लिए? इन्फ्लुएंसिंग द प्रोसेस, जिस प्रोसेस से इन्फ्लुएंस किया जाता है पब्लिक ओपिनियन को थ्रू द यूज ऑफ प्रोपेगेंडा एंड मीडिया मैनिपुलेशन, इसको स्पिन कहा जाता है. स्पिन. अब एडवोकेसी होता है किसी के फेवर में बातचीत करना, गेट कीपिंग होता है गेट कीपिंग, एंड पोलिंग होता है वोट डालना. सो द टर्म इज स्पिन, कीप इन माइंड. नेक्स्ट इज पब्लिक ओपिनियन इज अ डेमोक्रेसी इन अ डेमोक्रेसी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज पब्लिक ओपिनियन डेमोक्रेसी में इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इट डिक्टेट्स गवर्नमेंट पॉलिसी विदाउट टेंशन. नहीं, ये नहीं है. रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द पीपल एंड इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजंस यस, ये है. बाकी दो नहीं है. नेक्स्ट मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक फैक्टर दैट कैन इफेक्ट पब्लिक ओपिनियन? Which of the following is example of demographic factor? demographic factor क्या होता है? पॉपुलेशन से रिलेटेड फैक्टर जो कि प्रभाव डालता है पब्लिक ओपिनियन पे. तो वो है वेदर कंडीशन नहीं, इनकम लेवल हो सकता है. which of the following example is which of the following is an example of demographic factor that can affect public opinion? तो इनकम लेवल के हिसाब से फैक्टर, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित कर सकते हैं. तो इनकम लेवल आएगा इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन? इंटरनल सोर्स क्या है? टेलीविज़न न्यूज़, ये इंटरनल नहीं होगा. हाँ, इंटरनल फैमिली व्यूज़ हो सकता है. फैमिली वैल्यूज़, हमारे फैमिली वैल्यूज़ क्या है? बेसिक चीज़ें तो हम घर पे ही सीखते हैं. वी लर्न basic things from home, from family, from parents, from siblings. So family values होगा, right? Next move करते हैं fill in the blanks question पे. Okay, fill in the blanks पे चलते हैं. पहले public opinion is more important. Public opinion is more important in mechanism
than in democracy type of government. Here the fill in the blanks will be right mechanism and then in democracy. Next is public opinion. Next is public opinion must be dash and in the interest of the dash community. So public opinion must be just wait. Public opinion must be logical, right? Public opinion must be logical and in the interest of the whole community. Logical and in the interest of whole community. Right? Next, पहला क्या था, दोबारा से करते हैं इसको. फर्स्ट है पब्लिक ओपिनियन इज मोर इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी देन इन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट. यहाँ पे अथॉरिटेरियन आना चाहिए, यहाँ पे डेमोक्रेसी इज मोर इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी. राइट, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया. पब्लिक ओपिनियन मस्ट बी लॉजिकल एंड in the interest of whole community. Then next is public opinion is not the opinion of the majority. यहाँ पे आएगा majority. Next is public opinion is specially important in democracy. तो यहाँ पे आएगा democracy. Next is dash of the communication and dash are the best means of formulation and expression of public opinion. तो means public opinion is क्या आएगा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल पार्टीज. यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आएगा, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इन अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक ओपिनियन डज नॉट कैरी मच इम्पोर्टेंस. अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में पब्लिक ओपिनियन ज़्यादा मैटर नहीं करता है. 7वां क्वेश्चन है the voice of dash is the voice of क्या, people is the voice of the God. Next question is democracy drives its dash from the people and claims its legitimacy from the consent of the governed. तो यहाँ पे आ जाएगा legitimacy, here legitimacy और यहाँ पे claims its legitimacy. यहाँ पे authority आना चाहिए. Democracy drives its authority from the people and claims its legitimacy. जायज़ होना, sorry. Then question 9 है dash institutions, educational institution play a dominant role in the organization of public opinion. Next है 10 dash R the vital organ of modern civilization. तो डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यूज़पेपर या अभी तो सोशल मीडिया भी कह सकते हैं, राइट. नेक्स्ट इज डैश कंटेन्स वेल इन्फॉर्म्ड आर्टिकल्स बाय अथॉरिटीज ऑन वेरियस सब्जेक्ट. तो ये मंथली मैगजीन्स हो सकते हैं, पीरियोडिकल्स हो सकते हैं, आप यहाँ पे फिल कर सकते हो. 12 क्वेश्चन है द डैश इन्फ्लुएंसेस, यहाँ पे द डैश इन्फ्लुएंसेस ओनली द एजुकेटेड पीपल. तो ये प्रेस हो जाएगा, बट थ्रू स्पीचेस इवन द इलिटरेट मासेस कैन बी स्वेड एंड इन्फ्लुएंस्ड. तो प्रेस जो है वो तो इन्फ्लुएंस करती है सिर्फ एजुकेटेड लोगों को, लेकिन अभी सोशल मीडिया या फिर स्पीच या वीडियोस ये इवन इलिटरेट लोगों को, अनपढ़ लोगों को भी अपने फेवर में इन्फ्लुएंस कर सकती है. Political parties develop the dash intelligence of the dash and enable them to form their own opinion. तो political party क्या करती है, develop the
political awareness among the people, political intelligence among the people, and dash of the people and enable them. तो फिर ये यहाँ सेकंड में भी यहाँ people आएगा, यहाँ पे political intelligence आ जाएगा. नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन. The dash is effective instrument of educational propaganda for the widely scattered millions. तो ये यहाँ पे टीवी और रेडियो हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 15. The cinema can be used for organizing and moldings. तो सिनेमा को यूज़ किया जा सकता है ऑर्गेनाइज करने में, मोल्ड करने में. किसको? पब्लिक ओपिनियन को. नेक्स्ट है डैश इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द नेशन विद मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन. तो लेजिस्लेचर जो होता है रिप्रेजेंटेटिव होता है नेशन में अलग अलग लोगों का. लेजिस्लेचर, विधान पालिका जिसे हम कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. The political parties present their respective policies and programs in front of the people through election and dash. Through election क्या पे यहाँ आएगा? वो जो घोषणा पत्र देते हैं ना, मैनिफेस्टो, उससे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट करते हैं अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को मैनिफेस्टोज के द्वारा. और 18 है डैश एंड डैश रिप्रेजेंट अ गुड device for formulation and expression of public opinion. Initiative and referendum. Initiative and referendum represent good device for formulation and expression of public opinion. ये दो इंस्ट्रूमेंट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, इनिशिएटिव एंड रेफरेंडम. नेक्स्ट 19. डैश ग्रुप्स, वो प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं, प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द फार्मुलेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन आ जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप्स आ जाएगा. मॉडर्न एज इज एन एज ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनलिज्म. यहाँ पे इतने सारी चीज़ें आप लिख सकते हो. उसके बाद है द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ द गॉड. तो पीपल का वॉइस, गॉड का वॉइस. तो वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ द गॉड. यहाँ पे पीपल आ जाएगा और यहाँ पे वॉइस आ जाएगा. लोगों की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ है. तो ये थे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस. अब चलते हैं ट्रू फॉल्स वाले पे क्वेश्चन पे. विदाउट डिलेइंग let us do first question. Educational institutions are not considered an agency of formulation of public opinion. तो ये false है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं एक्चुअली जो फार्मुलेट करते हैं पब्लिक ओपिनियन को. तो यहाँ पे आ जाएगा ये false. नेक्स्ट है पब्लिक ओपिनियन हैज़ गॉट स्पेशल इम्पोर्टेंस अंडर टोटलिटेरियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट. पब्लिक ओपिनियन गॉट स्पेशल इम्पोर्टेंस, नहीं, ये भी फॉल्स है ना. डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है, वहाँ पे इसको स्पेशल इम्पोर्टेंस होता है पब्लिक ओपिनियन का, बट नॉट इन टोटलिटेरियन गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज मेजॉरिटी इज नॉट एसेंशियल टू फॉर्मुलेट द पब्लिक ओपिनियन. ये ट्रू है. थर्ड इज ट्रू. फोर्थ, साउंड पोलिटिकल पार्टी सिस्टम इज द बेस्ट एजेंसी टू फॉर्मुलेट पब्लिक ओपिनियन. ये भी ट्रू है. जो फोर्थ इज ट्रू. फिफ्थ, पब्लिक ओपिनियन इज रेलेवेंट इन एवरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. ये भी सही है, हर सिस्टम में ये रेलेवेंट है. नेक्स्ट है द पब्लिक पार्टीज प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री. तो ये भी ट्रू है. Illiteracy is one of the chief impediments in the formulation of sound public opinion. ये भी सही है. impediment क्या होता है? रुकावट होता है. रुकावट, impediment. क्वेश्चन नंबर 7. Illiteracy is one of the chief impediments in the formation of sound public opinion. ये भी ट्रू है.
8. The strength of democracy system lies in creating an atmosphere of fair and frank interaction of thoughts. तो ये भी सही है. नेक्स्ट है क्लास ओपिनियन इज डिफरेंट फ्रॉम द पब्लिक ओपिनियन. ये भी सही है, क्लास ओपिनियन अलग होता है. हर एक क्लास की अमीर वर्ग गरीब वर्ग के अपने अपने ओपिनियन होते हैं, पर वो पब्लिक ओपिनियन से डिफरेंट होते हैं. देन 10th है द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म. रॉन्ग है. ये क्या है? रॉन्ग है. इट इज नॉट ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. The ideas that the student receive in educational institutions leave an everlasting stamp on their character. Yes, ऐसा होता है. अगर आप किसी इंस्टीट्यूट्स के आइडिया से इन्फ्लुएंस्ड हो तो वो थ्रू आउट आपकी लाइफ को प्रभावित करता है. इट हैज़ एवरलास्टिंग स्टैम्प ऑन योर कैरेक्टर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द न्यूज़ पेपर हेल्प्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स. यस इट इज़ ट्रू. हर एक इम्पोर्टेंट मैटर के बारे में अखबार में छपता है, उससे हमारे व्यूज़ फॉर्म होते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ पब्लिक प्लेटफॉर्म फॉर डिफरेंट सोशल कल्चरल इंटेलेक्चुअल एंड पोलिटिकल एक्टिविटीज़. डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़. यस ये भी ट्रू है. 13 का आंसर ट्रू है. 14 चलते हैं. द पार्टी इन पावर एंड द अपोजिशन पार्टीज बाय देयर डिबेट्स एंड डिस्कशन एनलाइटन द पीपल. यस ये ट्रू है. लेकिन आजकल प्रॉपर डिबेट एंड डिस्कशन नहीं होता, लड़ाइयाँ ही होती है. आप देखते होंगे टीवी पे चैनल्स वगैरह पे. रेफरेंडम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन बाय द रिप्रेजेंटेटिव असेंबली. फॉल्स है. रेफरेंडम डायरेक्टली होता है तो इसमें असेंबली रिप्रेजेंटेटिव असेंबली का वाला कोई लेना देना नहीं, तो सो इट इज फॉल्स. Question number 16. In India, numerous religious bodies mold the idea and opinion of the votaries on public questions. काफ़ी है. न्यूमरस रिलीजियस बॉडीज हमारे जो हैं हमें प्रभावित करते हैं. नेक्स्ट है सही है. पब्लिक ओपिनियन इज द किंग पिन अराउंड विच द व्हील्स ऑफ गवर्नमेंट रिवॉल्व्स. ये भी सही है. पब्लिक ओपिनियन के अराउंड ही जो गवर्नमेंट का सारा दारोमदार चलता है. अगर पब्लिक ओपिनियन गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है तो वो जिस काम के फेवर में नहीं है तो गवर्नमेंट को वो काम छोड़ना पड़ता है. द जज कैन डिसाइड द केस ऑफ देयर ऑन अकॉर्ड. फॉल्स है. जज को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, जो लॉ है उसको फॉलो करना होता है. क्वेश्चन नंबर 19. इन अ डेमोक्रेसी लॉज आर मेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. ये सही है, ट्रू है. क्वेश्चन नंबर 20. In democracy, the citizen cannot create an opinion against unjust measures of the government. ये false है. कर सकते हैं और करना भी चाहिए, तभी डेमोक्रेसी सस्टेन करेगी, सर्वाइव करेगी. चलिए वन वर्ड और वन लाइन वाले क्वेश्चन आंसर करते हैं अब. व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन? पब्लिक ओपिनियन क्या है? बाय पब्लिक ओपिनियन वी मीन ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑन पब्लिक अफेयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन अ डेफिनेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. कोई भी प्रोफेसर ब्राइसी की डेफिनेशन है. द टर्म पब्लिक ओपिनियन इज कॉमनली यूज टू डिनोट द एग्रीगेट ऑफ द व्यूज मैन होल्ड रिगार्डिंग मैटर्स दैट अफेक्ट और इंटरेस्ट द कम्युनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मोस्ट एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन. तो ये मोस्ट एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स क्या है? पब्लिक वेलफेयर. क्या है? पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए. नेक्स्ट है What is the importance of public opinion in democracy? In democratic system, the government is based on public opinion. ये है इसकी importance. Question number 5. Mention one agency for the formulation of public opinion. कोई एक एजेंसी का नाम बताओ. तो ये कई सारे हैं, आप लिख सकते हो. प्रेस है, फैमिली है, स्कूल है, कॉलेज है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, मीडिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज The role is played by what role is played by newspaper in the formulation of public opinion? तो newspaper acquaints the people with daily news. Acquaints जानू करवाता है, acquaints नहीं, acquaints जान पहचान करवाना है, जानकारी देना. The people with the daily news events and the comment
upon the functioning of the government. They both praise and criticize. दोनों काम करता है अखबार, प्रेज भी करता है, क्रिटिसाइज भी करता है, वर्क डन बाय द गवर्नमेंट। तो इस तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों के विचार फॉर्मेशन में। नेक्स्ट, what role do the political parties play in the formulation of public opinion? Political parties present before the people of the country their own views on different problems. They also offer suggestion programs for the settlement of these problems. तो इस तरह से political parties अपने व्यूज रख के लोगों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, मेंशन एनी टू टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ हेल्दी पब्लिक ओपिनियन। अनपढ़ता है, पार्टीजन प्रेस है, गरीबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट डाउन एनी टू एजेंसीज ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, अखबार, फैमिली। राइट वन हिंड्रेस इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, इलिटरेसी, अनपढ़ता, गरीबी। विच इज़ द टू एसेंशियल कंडीशन फॉर द हेल्दी पब्लिक ओपिनियन? एजुकेशनल सिस्टम अच्छा होना चाहिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होनी चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ पब्लिक ओपिनियन? द कॉमन will or general good of will. It is will, not will. Common will, WILL. The common will or general good of the community is the basis of public opinion. Next question है, what is class opinion? Class opinion क्या है? When a smart part of society, small छोटा part of society, without keeping in view the गुड ऑफ द नेशन एज ए होल फॉर्म्स ओपिनियन इज कॉल्ड क्लास। एक क्लास, कुछ लोग या जब अपने लिए कोई व्यूज़ बनाते हैं तो वो है। व्हाट इज़ मेजोरिटी ओपिनियन? तो मेजोरिटी ओपिनियन है कि लार्ज पार्ट ऑफ सोसाइटी जब सबको ध्यान में रखते हुए, विदाउट कंसिडरेशन, सबको ध्यान में ना रखते हुए और विदाउट कंसिडरिंग द माइनॉरिटीज गुड ऑल्सो, तो उसको जब कोई व्यू बनाता है तो उसको कहते हैं मेजोरिटी ओपिनियन। What is Bible of democracy? Newspaper. Who serves as brokers of ideas? Political parties. What is referendum? Referendum क्या है? तो referendum is a direct vote. referendum में direct vote लिया जाता है। Eligible member of population are asked to express their opinion or make a decision on a स्पेसिफाइड पोलिटिकल, लीगल और इम्पोर्टेंट मैटर, उसको कहते हैं रेफरेंडम। जब लोगों से डायरेक्टली उनका ओपिनियन लिया जाता है किसी मैटर पे तो उसको कहा जाता है रेफरेंडम। इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट ग्रुप? एन इंटरेस्ट ग्रुप इज एन एसोसिएशन ऑफ पीपल। ये एसोसिएशन होता है, लोगों का संगठन होता है, पर्टिकुलर मैटर से लिंक होता है, हु आर लिंक्ड बाय पर्टिकुलर बॉन्ड ऑफ म्यूचुअल कंसर्न और इंटरेस्ट और पर्पस। व्हाट एक्ट्स एज ए वॉच डॉग फॉर द पीपल्स इंटरेस्ट एंड जनरल वेलफेयर? तो पब्लिक ओपिनियन, मीडिया को भी कहते हैं समटाइम्स। नेक्स्ट है, how do the elections help in the running of administration? The election provide an opportunity to the people. लोगों को people को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है इलेक्शन के द्वारा टू एक्सप्रेस देयर अप्रूवल और डिसअप्रूवल। अपना अप्रूवल और डिसअप्रूवल जाहिर कर सकते हो आप किसके बारे में? प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ किसके? वेरियस पोलिटिकल पार्टीज़ के। जिसके प्रोग्राम्स आपको अच्छे लगते हैं आप उसको वोट डालते हो। सो दिस इज the end of the chapter, public opinion, right? If you have any comment, do comment. If you have any question to ask, do ask in the comment section. Thank you very much. God bless you.